مهرانی درود سر باتاں پا بلوچ راجا بڑا داریں چاروں کا شمار جگہ ہر کجات شمع زندبان وشبہ. آج ہم بات کریں گے جلمکسی کے حوالے سے. جلمکسی بلوچستان کا ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ آج بھی وہاں صرف ایک ہی انٹر کالج ہے. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں یا کہ ترقی یافتہ دور میں جلمکسی کا اس حد تک پسماندہ ہونا کے سبب کیا ہیں؟ کیا قبائلی سسٹم ہے یا ریاست ہے یا کہ وفاقی پارٹیاں ہیں؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف عزیز مکسی بلوچ نیشنلزم کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل ہے. تو آج ان کا اپنا ڈسٹرکٹ نیشنلزم کے حوالے سے اتنے پیچھے کیوں ہے؟ وہاں کے نوجوانوں کا رجحان کس طرف جا رہے ہیں؟ اور وہاں کے نوجوانوں کا یا کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ کا میجر ایشوز کیا ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اس پہ. اور ہمارے مہمان ہیں جلمکسی کے نوجوان جناب خلیل بلوچ کے. وہ خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ خلیل بلوچ کے ساتھ. جی السلام علیکم خلیل بلوچ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل شکر ہے شمس صاحب۔ تھینک یو سو مچ، ہمیں میدان میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں فار جوائننگ اس. پہلے ہم کچھ تھینک یو۔ کوشچنز ہیں، سوال ہیں خصوصاً جلمکسی کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اوورال بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے یوتھ کے حوالے سے. مگر زیادہ تر فوکس جلمکسی رہے گا کیونکہ وہاں کے حوالے سے. پہلے تو آپ ہمیں ہمارے سامعین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جلمکسی کے خاص کر وہاں کے نوجوانوں کی علمی اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ سب سے پہلے شمس صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا ہے اسپیشلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو اس طرح کی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ یہ ایک آپ کی ایسی انیشیٹو ہے کہ آج آج آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اپنے چینل کی طرف سے، میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جھلمکسی کے حوالے سے، دیکھیں میرا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ جھلمکسی سے ہے۔ ہوں. جہاں تک میری خیال ہے ڈسٹرکٹ جھلمکسی پورے بلوچستان میں بیک ورڈ ہے، پورے بلوچستان میں۔ آپ وہاں کی ایجوکیشن کی سسٹم کو دیکھیں بھی سب سے بیک ورڈ ہے، ہیلتھ کی سسٹم کو دیکھیں بھی سب سے بیک ورڈ ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں آپ سب مطلب جنرلی اوور آل آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ جھلمکسی پورے بلوچستان میں بیک ورڈ ڈسٹرکٹ ہے، جہاں تک مجھے میرا آبزرویشن ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے جھلمکسی کی ہوں. وہ 23% ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھلمکسی کتنا پیچھے ہے۔ تو اس کا جو کیا علاقہ وجوہات کیا ہیں کہ اس دور میں بھی جلمکسی بلوچستان میں سب سے، کیا یہ قبائلی سسٹم کے اثرات ہیں یا کچھ اور ہے؟ جی دیکھیں یہی ریشو ہے، ٹرائبلزم سسٹم وہاں پہ اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا، جس علاقے میں تعلیمی سہولیات نہیں ہوں گے، وہ علاقہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا ہے، وہ بیکورڈ ہی رہے گا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں ٹرائبلزم یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈیموکریسی، دوسری بات ہوتا ہے ایٹوکریسی سسٹم۔ وہاں پہ ایٹوکریسی سسٹم کی جو ہے ریشو زیادہ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بیکورڈ ہے اس وقت۔ اب دیکھا جائے تو پورے ڈسٹرکٹ میں کالج کے حوالے سے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک انٹر کالج ہے۔ آپ کو پتا کہ یوسف عزیز مکسی ایک بڑا، میں کہتا ہوں کہ ایک وہ گزرا ہے، عوامی لیڈر تھا بلوچوں کا، تو یہ وہ اسی کا علاقہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی کے علاقے میں پورے ڈسٹرکٹ میں 2 لاکھ کی آبادی میں ایک انٹر کالج ہے، وہ بھی آپ کی ہیڈ کوارٹر سے 65 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی یوتھ کیسے آگے جا سکتے ہیں، وہ کیسے مطلب اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں۔ ایک جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگا تو آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو قبائلیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرے علاقوں میں بھی قبائلی اثرات ہیں، جس طرح آپ بلوچستان کا زیادہ تر علاقہ ہے یہ قبائلی سسٹم ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ یوسف عزیز مکسی کا آپ نے ذکر کیا. ایک اور بات ہے کہ یوسف عزیز مکسی انہیں بلوچوں کا یا بلوچستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشنلزم کا بنیاد ہے انہی لوگوں نے رکھا، انہی کی وجہ سے وہ قوم پرستی جو جدید نیشنلزم ہے. تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایریاز میں فرض کرو جلمکسی میں وہاں قوم پرستی کا رجحان بہت کم ہے. تو وہاں کے نوجوانوں کا کیا آج کل کے رجحانات ہیں؟ تو قوم پرست پارٹیوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے یا کہ وفاقی پارٹیوں کے وہاں اثرات زیادہ ہیں اس لیے قوم پرستانہ ایکٹیویٹیز نہیں دکھتے؟ دیکھیں یہاں آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ وہاں پہ مطلب نیشنلسٹ پارٹی کی کیا وہاں پہ انفلوئنس ہے یا نہیں ہے۔ نیشنل
नेशनलिस्ट पार्टी हैं उनकी इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वन मैन शो है। आपको पता होगा कि एक दफ़ा एक मतलब सोशल एक्टिविस्ट ने पार्टिसिपेट की, पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन की, तो उसको वहाँ मारा गया। आप इससे अंदाजा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नौजवान कैसे आगे जा सकते हैं और कैसे वहाँ पे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वक्त वहाँ पे जो एक्टिव पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो है जमात इस्लामी। उसकी जो पॉलिटिकल है वो नौजवानों को आगे ले आने की कोशिश कर रहा है और वहाँ की आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है। 2022 में जब फ्लड आया, झलमक्सी के जो मुंतखब जो नुमाइंदे थे, वो तो उस वक्त बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहे थे, स्क्रीन पर भी नहीं आ रहे थे। उस फ्लड में, उस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है, वहाँ पे जमात इस्लामी सबसे आगे था, जो हम्म। आवाम को फैसिलिटेट कर रहा था। असल मकसद क्या है? असल मकसद पॉलिटिकल पार्टी ये है कि आप पब्लिक को फैसिलिटेट करें। जब तक आप पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप कैसे मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही है कि पब्लिक को लीड करना। जब वो इस चीज में खिलाफ हो गए थे, अब देखने में आ रहा है कि इलेक्शन नजदीक हो रहे हैं पाकिस्तान में, 8 फरवरी को हो रहे हैं। यही नुमाइंदे, उनको 5 साल पुराने फातिहा ख्वानी याद आए हैं, अभी लोगों के बैठकों की जीनत बने बैठे हैं। तो इनको ये चीज याद नहीं आ रहा कि उस मुश्किल घड़ी में मतलब जो लोग वो उस मुश्किल घड़ी में थे, फ्लड में, एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय जमात इस्लामी के। वो पार्टी इस वक्त एक्टिव हैं, और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि नेशनलिस्ट पार्टी वहां पे हो, एक्टिव हो और पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रहा हो। तो किसका होल्ड है वहाँ पे? आप जमात इस्लामी के वहाँ के फर्ज को नवाब जुल्फ़िकार मक्सी हैं, वो तो गवर्नर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के और वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो इसके बावजूद दूसरे पार्टियों का यहाँ वहाँ की इस हद तक भारी तादाद में, तो किसकी होल्ड ज़्यादा, देखिए कौन किस मैंने पार्टी की है? देखिए होल्ड वहां पे इससे पहले गवर्नमेंट की थी, बाप पार्टी की थी। हम्म। अवाम उससे नाला है इस वक्त। उसने, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कुछ काम नहीं किया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, सारे ऑक्युपाइड हैं उनके। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहा है इस वक्त। मैंने ये पहले बात की कि फ्लड में जितने भी काम हुए हैं वो सिर्फ जमात इस्लामी ने किए, ना हम्म। कि किसी और पार्टी ने किए। बाप पार्टी के वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं इस वक्त भी। जो पिछला गवर्नमेंट था उसमें भी यही नवाब खानदान की फैमिली के भाई थे। तारिक मक्सी था, खालिद मक्सी एमएनए था। तो उन्होंने आज तक इस तरह की कोई काम नहीं किया। आप आके देख सकते हैं वहाँ की एजुकेशन की, मैंने पहले जिक्र किया कि लिटरेसी रेट 23% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नुमाइंदों ने कितने हद तक काम की है। आप हेल्थ की सिस्टम आके देखें कि वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। आप आके देखें वहाँ पे मेडिसिन मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो डिलीवरी केसेस हुए हैं फ्लड में, बहुत सारे डेथ हो चुके हैं डिलीवरी केसेस की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से ये डिलीवरी डेथ हो चुके हैं। हेल्थ फैसिलिटीज न होने की वजह से ये डेथ हो चुके हैं हम्म। ना। अगर ये चीजें होते तो ये इस तरह की केसेस वो नहीं हो जा रुनुमा नहीं होते। तो आप इससे ये- अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। मैं मानता हूँ वो वजीर आला भी रह चुके हैं, वो गवर्नर भी रह चुके हैं, वो हर गवर्नमेंट में आते हैं। ये यही बात है कि असल बात है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट पे कितना काम कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं, यही मसला है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, जब मैंने देखा है, वो सिर्फ जमात इस्लामी ने झलमक्सी में इस वक्त काम किया है। वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो चीजें थे, हेल्थ पे उसने फ्रंट पे काम किया है, और वो जो मुख्तलिफ जो चीजें थे वहाँ, जो बेसिकली जो नीड थे, उन पे उसने बहुत लोगों को जो है फैसिलिटेट किया है। यूथ का क्या रुझान है, नौजवानों का सियासत के बगैर, फ़र्ज़ करो इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हैं कोई? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि यूथ उस वक्त इंगेज हो सकते हैं, यूथ उस वक्त आगे जा सकते हैं जब आपकी आपके यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हों। तब यूथ में एक अवेयरनेस, एक वो इंटेलेक्चुअली यूथ आगे जा सकते हैं। उनमें मतलब वो एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद हों, उनको पता हो कि हमने कैसे आगे जाना है, किस तरह हमने लीड करना है, कैसे अपने कम्युनिटी पे काम करना है, अपने यूथ को आगे ले जाना है।
वहाँ पे इस तरह की आज तक जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो यूथ कैसे आगे जा सकते हैं? एक बात ये है कि जो यूथ सोचता है, जो भी नौजवान आगे जाने के लिए सोचता है, कोशिश करता है, तो वो अपनी मतलब आपको पता है कि इकोनॉमिकल इस वक़्त इंस्टेबिलिटी है। हम्म। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तो ट्राइबल एरिया है, वहाँ तो ज़्यादा होगा। यहाँ हमारे यहाँ तो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम ज़्यादा है, हम आवाम की जो है इनकम को अपने ऊपर यूटिलाइज़ करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो यूथ कैसे आगे जा सकते हैं। जब तक कि ये चीज़ खत्म, एटोक्रेसी सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक वहाँ के यूथ मेरे अंदाज से वो आगे नहीं जा सकते। तो आपने बोला वहाँ के एक कॉलेज है, एक कॉलेज आपने बोला था, जी, एक इंटर कॉलेज है, जस्ट वो जस्ट भी इंटर, हेडक्वार्टर गंगावा से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और लड़कियों के लिए कोई कॉलेज? कोई भी नहीं है, यही तो एक डायलिमा है कि वहाँ पे फीमेल और गर्ल्स के लिए आज तक ना कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज है। पूरे जलमक्सी में नहीं है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यही तो मैं को वो डिस्कस कर रहा हूँ कि जब तक आपके यहाँ एजुकेशन नहीं होगा, तो आप कैसे compete कर सकते हैं, कैसे आप आगे जा सकते हैं ना आपकी नौजवान। है ना, एजुकेशन को तो वैसे ही अगर हम देखें तो हर तरफ से हर जगह पे इन्हें रोका गया है, और ख़ासकर जो कबायली इलाका है वहाँ रियासत के लिए आसान था कि हमारे अपने लोग इस्तेमाल हुए थे। तो इसका अभी जो मगर सोशल मीडिया है, अभी इंटरनेट का ज़माना है, लोग बाहर हैं, उनके ताल्लुकात हैं, यानी सोशल सेक्टर में भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग अपने हवाले से सरकार के बगैर। जिस तरह की एनजीओज़ की शेप में हर कोई बना रहा है या काम कर रहा है, कोई लिटरेरी हवाले से, कोई एजुकेशन हवाले से। इस तरह की कोई मोबिलाइजेशन या मोटिवेशन कहीं से नज़र आती है या नहीं? देखिए, मैंने ये पहले भी आपसे गुजारिश की है कि जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सारे ऑक्युपाइड हैं इनकी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आता है, इनकी कहने पे, इनकी डायरेक्शन पे काम करता है, वो भी मजबूर है। अब आपने कहा है कि जो इस वक्त यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ आपको पता है कि बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। वो ईएसपी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे काम कर रहा है। उसके अंदर भी करप्शन हुआ है। आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जो एक यूएन की इदारे के अंदर वहाँ के लोग करप्शन करते हैं, तो अवाम तक ये कैसे पहुंच सकता है। मैं खुद रहा हूँ उसमें, मैंने देखा है कि तकरीबन 75 लाख तक करप्शन हुआ है। जो स्कूल रिहेबिलिटेशन उसकी जो है शेल्टरलेस स्कूल्स के लिए जो बजट आया था एसडीपी का, और बाकी जो स्कूल्स के लिए जो सामान आए थे, वो भी वहाँ के नवाबों के कहने पर हड़प कर लिए गए, वो सारे करप्शन की नज़र हो गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के अवाम, वहाँ की जो, जैसे आपने कहा कि जेंडर इक्वलिटी ट्राइबलिज्म है, तो वो एजुकेशन कैसे पहुँच सकता है। वहाँ के मेल्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हो सकता है, तो फीमेल कैसे हासिल कर सकते हैं। इतने बड़े करप्शन, मुझे हैरानगी इस बात पे हो रहा है कि यूएन की इदारे के अंदर यूनिसेफ की एक प्रोजेक्ट था, एजुकेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट। हम्म। उसके अंदर वहाँ के लोकल बंदे थे जो कि मतलब फेवरेटिज्म आप कह सकते हैं, मतलब सोर्स कल्चर पे जो वो हाई हुए थे, उन्होंने मिलके वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर थे उनके उनके साथ मिलकर ये करप्शन की है। अगर ये चीजें यूएन के अंदर, ये चीजें करप्शन हो रहे हैं यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये चीजें गरीब तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वहाँ एक और सवाल है कि वहाँ हमारे जो जितने बलूच आबादी है, उन बलूचों में ये हिंदू कितनी है आबादी में है बलूच हिंदू? जी हाँ, वहाँ हेडक्वार्टर गंदावा में है, माइनॉरिटी में है, इतनी वो ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है, लेकिन है माइनॉरिटी में है। मगर उनका जो बलूचों के साथ उनका जो रिश्ता है, जो दूसरे मुसलमान हैं या हिंदू हैं, उनका क्या रिश्ता बलूचियत से है या मज़हब के हवाले से है? किस तरह है उनका भी एक दूसरे के साथ ये ताल्लुकात? उनकी मज़हब के हवाले से नहीं है, उनकी कल्चरल इंटरेक्शन है। बिल्कुल हमारी जो ट्राइबल जो कल्चर जो है हमारी, उस हवाले से उनकी इंटरेक्शन रहते हैं हमारे साथ, और हम उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो भी मिनोरिटी हैं हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा मिनोरिटीज हिंदू हैं। कल रात एक वाकया हुआ, इस पे मैं आपको ये एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ। एक हिंदू ताजिर था, उससे तकरीबन 4 लाख 30 या 4 लाख 80 हज़ार के करीब जो है बंदूक की नोक पर जो है लोग, और जो चोरों ने जो है उसको लूट कर वो चले गए।
ये उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हुई है। और ये असल देखें ना, चोरों ने लूटा कैसे, किसके बंदे थे, इस चीज को हमने देखना है। यही सरदार, यही नवाब इन लोगों के बंदे थे ना, कि वो आके एक कमजोर इंसान को जो है वो लूट के चले जाते हैं उनकी कहने पे। ये फिर किसकी पनाह जाके लेते हैं, वही उन्हीं के। आप इन चीजों पे भी एज अ लीडर नजर रखें कि इस तरह के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो वेनरेबल कम्युनिटी है, उसकी आपने एज अ लीडर ख्याल रखना है। जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे, आप उसको मजीद पिसने की कोशिश करेंगे, तो वो इस तरह की हालात से वो जो है तंग आकर, जाहिर बात है, वो अपनी आवाज को आगे ले जा सकते हैं। इससे एक गरीब को बड़ा नुकसान हुआ। ये नहीं है कि वो एक मजहब उसकी जो है हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी बेस पे आप देखें तो उसके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इस तरह तो पहले कभी नहीं होता था। पहले जो माइनॉरिटी में थे, चाहे बलूच को बलूचों के अपने नस्लों से होते थे या कि मजहबी हवाले से होते थे, तो वो अमूमन कबायली इलाकों में इसलिए वो काम करते थे या रहते थे कि वहाँ वो ज़्यादा सेफ थे, क्योंकि वहाँ हमारे जो रूल्स थे वो ज़्यादा अप्लाई होते थे कबायली एरियाज़ में। तो एक बहुत यानी उन पे कभी कोई चोरी या डाका इस तरह का कोई मसला नहीं था। मगर आजकल जो रियासत ने बनाए हुए बहुत सारी फेक नवाब, फेक सरदार और फेक लीडर बनाए हैं, तो इसीलिए इस तरह के हालात ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इस दौर में जो एक तरफ देखते हैं आईटी है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और पॉलिटिकल हवाले से आप देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, तो बलूचिस्तान के हालात को देखकर और जलमक्सी के, आप क्या कहेंगे कि अभी मेजर इश्यूज क्या हैं वहाँ के नौजवानों के खासकर? देखिए, जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त स्टेबल नहीं है पूरे बलूचिस्तान में। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑक्युपाइड हो चुका है। यही आपने कहा है कि फेक नवाब और सरदार हैं, इनकी वजह से ये चीजें ऑक्युपाइड हो चुके हैं। इन्होंने बेचा है पॉलिटिकल सिस्टम को, और बलूचिस्तान को स्पेशली पॉलिटिकल ग्राउंड बनाया हुआ है इन्होंने, अपनी इंटरेस्ट को, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। हम्म। सबसे पहली बात जो मेजर आपने कहा कि झलमक्सी, बलूचिस्तान में झलमक्सी में जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक बड़ा इशू है झलमक्सी में। इस वक्त वाहिद जमात इस्लामी है, उसने जो है बाकायदा तौर पर अपना ऐलान किया है। वहाँ उन्होंने अपने नुमाइंदे को टिकट भी जारी किया है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। ये वाहिद पार्टी है कि इस वक्त जो है इन नवाबों, मैं तो कहता हूँ कि जो फ्यूडलिज्म को फोकस कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन्होंने अपने बंदे को खड़ा किया है इस इलेक्शन में। ये एक अच्छी इनिशिएटिव है मेरी नज़र में। क्योंकि इससे पहले नहीं तकरीबन होते थे ना? नहीं, 80 की दहाई से लेकर आज तक किसी बंदे ने इनका मुकाबला नहीं किया। एक बंदे ने मुकाबला किया, उसको भी उन्होंने मारा, कत्ल किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है। और ये एक बड़ा इशू है आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वहाँ झलमक्सी में। तो वो इसीलिए नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई हमारे मुकाबले में ना आए, कोई नौजवान आगे ना जाए हमसे। वो इसीलिए अवाम को या पब्लिक इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो अवाम को फैसिलिटेट करें या पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करें, जाहिर बात है, अवाम तो मुकाबला कर सकता है, उसकी राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो जितने भी इदारे हैं, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे ऑक्युपाइड हैं, इनके वन मैन शो है वहाँ पे। हम्म। जितनी भी हायरिंग होती है, इनकी कहने पर होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी इनकी डायरेक्शन पे जो है हायरिंग होती है। आप हेल्थ में देखें, एक मतलब जूनियर डीएचओ को डॉक्टर रुखसाना है, उसको सीनियर से आगे लेके इन्होंने आके बैठाया हुआ है। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। जो सीनियर्स हैं, जिसका राइट है, आप उसको लाएं। मकसद ये है लाने की कि ये फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को फोकस कर रहे होते हैं, अपने बंदों को ला रहे होते हैं, ताकि जो डिपार्टमेंट है वो ऑक्युपाइड हो हमारे हाथ में।
एजुकेशन में इतना करप्शन हुआ है, वो भी ऑक्युपाइड है, उनके बंदे हैं, उनकी कहने पे हायरिंग हुई है, यूनिसेफ में उनकी कहने पे हायरिंग हुई है। मुझे हैरानगी इस बात की हो रहा है, बहुत सारे नौजवानों ने टेस्ट दिए, ताकि मेरे पास उनकी इतने हद तक रिकॉर्ड आया कि एक नौजवान ने 40 में से 38 नंबर उठाए, टॉप पर था, लोकल था, उसको वो पोजीशन नहीं दिया गया, किसी फेलियर बंदे को वो पोजीशन देकर उनकी डायरेक्शन पे वो हायरिंग की गई। इतने हद तक डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो नौजवानों के साथ। अब हर कोई मतलब ये वो उनकी माइंड सेट में ये है कि साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट हो रहे हैं इससे, कि हम कैसे पॉलिटिकल इनके साथ मतलब वो compete करें। ये वाहिद जमात इस्लामी जो पार्टी है, उसने इनके साथ इस दफा compete करने के लिए वहां पे अपने बंदे को टिकट जारी किया। और बलूच भी मुझे गए हैं, जमात इस्लामी में हैं बलूच? जी बलोच है, वो है मीर अजीज लाशारी, उसको उन्होंने टिकट जारी किया है अभी वहां पे। वो जी वो इस दफा जो है जमात इस्लामी की टिकट से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये हैरानगी हो रहा है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, उनके मुकाबले में एक बंदा इलेक्शन में उठा और उसको उन्होंने मारा। क्यों मारते हैं, क्यों मारा है, ये असल देखा जाए कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप पॉलिटिकल पार्टी या आप पॉलिटिशियन में हिस्सा ले सकते हैं या इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इनकी मानने का वजह ये था कि हमारे मुकाबले में आएगा कोई बंदा ना आए। क्यों ना आए, ये वन मैन शो 80 की दहाई से लेकर आज तक यही लोग सिलेक्ट होते आ रहे हैं। अवाम को इन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है, अवाम को सेलेब इन्होंने बनाया हुआ है, इदारों को इन्होंने वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑक्युपाइड बनाया हुआ है। मुझे हैरानगी हो रहा है, मैं खुद परेशान जब हूँ रियासत कि नहीं होगी तो हर कोई अपना रियासत बनाएगा ना। ये रियासत के अंदर रियासत बनाना एक मेरे लिए तो हैरानगी की रियासत बात की है। कमज़ोरी है ना ये इस पे। ये- एग्जैक्टली। हाँ, जब तो रियासत कमज़ोर होता है तो उसके जो ताकतवर होते हैं मजहबी हवाले से, जिस हवाले से होते हैं, वो उसको अपनी ताकत को अपने मुताबिक यूज़ करते हैं ना, गलत यूज़ करते हैं। एक और बात है कि वहाँ जो बलूच हैं उनमें कितने परसेंट बलूची नहीं बोल सकते हैं, ये दूसरे वो ज़ुबान सराइकी, तकरीबन सिंधी। 80% बलूची जुबान है, 20% बाकी जो सिंधी लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेजेस हैं, वो बोले जाते हैं वहाँ पे। जी खैर सब हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में दूसरे मौज़ूआत पर, ओवरऑल बलूचिस्तान पे। तो आज हमारा टाइम भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप कुछ मैसेज या कोई कहना चाहते हैं, क्या क्या कहेंगे आप ओवरऑल बलूचिस्तान के नौजवान हैं या जलमक्सी के ख़ासकर? जी शम साहब, मेरा जो बलोच और जो हमारे नौजवान हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए यही पैगाम है। इस वक्त जो इलेक्शन आ रहे हैं, अपने हलके में जितने भी नौजवान हैं, कोशिश करें भरपूर तरीके से जो है इलेक्शन में हिस्सा लें। और दूसरी बात ये है कि अपनी वोट की इम्पोर्टेंस को देखकर अपनी वोट को यूटिलाइज करें। बलूचिस्तान बहुत साल पीछे है, 100 साल तक पीछे है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अगर हम नौजवान इसको आगे ले जाना नहीं ले जा सके, ऐसे समझिए कि हमारे लिए बड़ी वो अ, मैं कहता हूँ कि बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि हम इसको आगे ना ले जा सकें।